Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about law of multiple proportions. This law was stated by John Dalton, an English scientist. He stated this law in 1803. This video is going to be very important for the students of chemistry class 11th and science students of class 9th or any other person who is pursuing his one day examination with the science as SSC or railways where science makes a major part. So the video is going to be in two parts. First half will be for the English medium students and second half will be for the Hindi medium students. Total definition and total explanation is based on NCERT books, so don't be very painful. All the video will be for the NCERT based, and any board which follows NCERT pattern in all over the Indian subcontinent, you are there for the explanation. So let's begin the video. First, John Dalton in 1803 stated that when two elements combine with each other to form two or more compounds, the ratios of the masses of one element that combines with the fixed mass of the other are simple whole numbers. Means when two elements are taken to combine and make two or more compounds, the one of two elements will be in fixed mass and the other one will be in variable masses, or its ratio will be variable so that we can find more compounds in different variables in different ratios. This is known as law of multiple proportion. For example, nitrogen and oxygen combines with each other to make nitrogen dioxide NO2 and nitrogen tetroxide N2O4, in which we have the ratio between nitrogen and oxygen. For nitrogen dioxide NO2, the ratio is 1:2, and for nitrogen tetroxide the ratio between nitrogen and oxygen is 1:4. This is a very simple example of law of multiple proportion, where one element is fixed and the other is varying its mass. Clear? If you have any doubt, you can raise it in the comment box. For that, you have to be watching the video till the time we are discussing it. Clear? Hope I am clear. अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस नियम के बारे में। आज हम बात करेंगे गुणित अनुपात के नियम के बारे में। यह आपके रासायनिक संयोजन के लिए बहुत ही आवश्यक नियमों में से एक है। यह रासायनिक संयोजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में हमें अंग्रेज वैज्ञानिक या शिक्षाविद आप कह सकते हैं या वैज्ञानिक कहिए, जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में बताया था। सन 1803 ईस्वी में उन्होंने इसके बारे में बताया था। आइए जान लेते हैं यह नियम क्या कहता है और इसका उदाहरण क्या है, कैसे इसका प्रयोग हम रासायनिक संयोजन में करते हैं या रासायनिक संयोजन यानी कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में यह बताया कि जब दो तत्व यानी दो एलिमेंट्स आपस में संयोजित होकर यानी एक साथ मिलकर क्या करते हैं, दो से अधिक यौगिक यानी कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तब एक तत्व का जो
दो तत्व होते हैं, उसमें से एक तत्व का है उसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, उसमें से एक जो एलिमेंट होगा उसके जो मास होगा वो वेरिएबल होगा, अलग अलग मासेस में उसको लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा, अलग अलग प्रकार उसी कंपाउंड के अलग अलग वेरिएबल प्राप्त होंगे। द्रव्यमान बदल देंगे तो उसका जो नाम है वो बदल जाएगा। तो एलिमेंट हमारे वही दो हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक का हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान बदल दे रहे हैं। और अभी थोड़ा सा लाइट का इश्यू हुआ था, अब क्लियर हो गया होगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो लाइट ट्रिप कर गई थी इसलिए ऐसा हुआ। होप अब क्लियर होगा। आइए, इसका कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो आपके एलिमेंट्स यानी दो तत्व संयोजित होकर, तो उसमें क्या होता है, एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, ऊपर नीचे कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। और दूसरा उसमें तत्व होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर होता है, वो उसे हम फिक्स रखते हैं, वो स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता है, वो नियत रहता है। तो जब एक तत्व का द्रव्यमान नियत है और दूसरे का वेरिएबल है यानी बदल रहा है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान उसका हम उपयोग में ला रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो इन दोनों का जो संयोग करने के बाद जो द्रव्यमान होता है वो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, मतलब होल नंबर्स होते हैं। कभी भी हम सही बटे में इसको प्रयोग नहीं करेंगे, उनका जो अनुपात होता है वो पूर्णांक में होता है। लघु पूर्णांकों में मतलब छोटे छोटे पूर्णांक संख्याओं में ही उनका अनुपात चलता है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी बात, ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब आइए फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है परिभाषा है आपकी। परिभाषा है, जब दो तत्व संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 में दो ही तत्व हैं आपके, दो एलिमेंट है, कौन कौन के हैं, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, इनका अनुपात भिन्न भिन्न है। इससे हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोजन हुआ उसमें इनका जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, इससे इनका नाम बदल गया। इनका हम यौगिक तो दो ही तत्व हमारे दो ही हैं मगर यौगिक बदल जा रहा है, इसीलिए कहा दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो उस समय उनका अनुपात बदलने से उनका यौगिक भी बदलता चला जाएगा, मगर तब तो हमारे जो एलिमेंट मूल तत्व या एलिमेंट्स होंगे वो सेम रहते हैं। एक का हमने द्रव्यमान स्थिर रखा है या नियत रखा है, फिक्स रखा है, दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल वेरी कर रहे हैं। आइए इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रेशियो है ये 1:2 का, तथा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में ये जो रेशियो है वो कितने का हो गया है, 1:4 का। यहां हम देख सकते हैं कि ये सीधे सीधे क्या बता रहा है, जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी जो जॉन डाल्टन ने कही थी, इसे क्या कहा जाता है, गुणित अनुपात का नियम। मतलब कि जैसे जैसे आपका हम उसका जो द्रव्यमान है वो बदलता जाएंगे, उसी अनुपात में, उसी गुणित अनुपात में क्या होगा, आपका दूसरा जो आपका तत्व है वो स्थिर रहेगा और उसी अनुपात से आपका बढ़ता चला जाएगा। और वह हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं, लघु पूर्णांक संख्याएं या होल नंबर्स जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं होती हैं। कभी भी हम इसको सही बटे में यूज नहीं करते हैं, मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे, हमेशा जब भी होंगे वो होल नंबर्स ही यूज किए जाएंगे। यही आपका गुणित अनुपात का नियम है जिसे जॉन डाल्टन जी ने सन 1803 में प्रतिपादित किया था या हमें बताया था। आशा है अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और आप अच्छे से अब इसे पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जब आप बुक से एक बार और वीडियो देखने के बाद बुक को आप अपने देखेंगे तो आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से इसे स्टेटमेंट को लिख पाएंगे। आशा है आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी समझाई हुई बातें अच्छी लग रही हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो कृपया
अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो। और अगर आप हमारे पुराने साथी हैं और वीडियो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ यह आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें साथियों, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव साझा जरूर करें कमेंट के रूप में। और साथ ही साथ वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जो इससे आगे लाभ लेकर और अच्छे से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें और उन्हें भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। इसीलिए हम सरल, सहज एवं आसान भाषा और आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको चीजें आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। आशा है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।